Hello everyone, we all are welcome here to the channel Abhi Spaz, and so sorry that I have not posted the videos since it's been around 20 days, I guess. So it's my apologies. But I want to mention you one thing that for 20 days when I was like a little bit disappear from the social media and recording, but I was doing one thing that I was keep practicing the thing that I have promised with me. See, like to just record video and to upload on YouTube is not the only one solution for the communication skill. You can do it in any way. Like if you are alone at home, okay, and uh, and if there is even if there is no one in your home right now, okay. So if you can do you can do one thing, okay, like I'm stuttering more, so it's no problem. Like I have to deal with that, and I will definitely deal one day. So it's common, and I have to keep a smile that I am stammering because the problem is that just smile at your challenge, then you will think in that way that you are the superior in front of your challenges, whatever it is. See, in my case it is my problem, it is my issue in speaking, so it's a challenge for me. But whenever I feel like I should smile and just pass a form smile. You are challenging me, then at that moment you somewhere or nowhere you will get the power to tackle, to deal with that problem. I don't know how who have made this tactic, but it worked. Just try at whenever you will feel like you have been trapped or you have been stuck somewhere and you want to escape from there, but you are not getting any particular solution, then just try this one. You will definitely get a help from this, okay. Like if no, you cannot do like this. Like you are in a class, you are in a class room, and you have not done the homework, and the teacher is about to beat you, and you are just like you are just passing a smile. Huh, you are beating me. I will say, no, it's not like that. I'm not promoting this anymore because yeah, this is not bad. This is not the good thing. Sorry. अब तो होता है. अब तो ऐसा होता है कि चलिए मारिए, बाहर आपको देख लेंगे. So we can say the rules and regulations are not that much strict as they are used to be in our times. तो ऐसा है, तो क्या कर सकते हैं. तो अब टीचर मारे भी ना, तो बच्चे सुधरेंगे कैसे. बच्चे सुधरेंगे कैसे जब टीचर मारेगा नहीं तो. बात किसी को नहीं लगती. सी, एडोलेसेंस एज में बात सबको लगती है, मैं ये फैक्ट मना नहीं कर रहा. लेकिन कुछ होते हैं बेशरम, कुछ होते हैं बेशरम, सॉरी फॉर द वर्ड्स, बट कुछ ऐसे होते हैं जो आप उनको कितना भी बोल लो फर्क ही नहीं पड़ता. जब तक दुखहरण महाराज, हम लोग जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, देन देयर वाज अ टीचर नेम रामविलास यादव सर, ऑफ बायोलॉजी, ऑफ बायोलॉजी टीचर. और वो साइंस पढ़ाते थे और बायोलॉजी पढ़ाते थे. तो जब वो मारते थे किसी को तो बोलते थे, अभिषेक गो एंड ब्रिंग द स्टिक फ्रॉम, लाइक लेट्स टेक द incident from class 8A. Section was 8, class is 8 and section is A. So I was in class 8A and I used to sit in on the first bench. या मैं फर्स्ट बेंच पे मोस्टली बैठा हूँ, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, थर्ड में कभी बैठा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछना होता था ना. टीचर्स टीचर्स फेवरेट स्टूडेंट, क्या कर सकते हैं उस टाइम पे. यही था कि जितना हो सके उतना पढ़ाई करो और टीचर्स के फेवरेट बने रहो, ताकि मतलब यू नो बेनिफिट तो होता ही है ऑफ कोर्स. कभी कभी आप मार खाने से बच जाते हैं, ये भी होता है. तो वही बात है. तो फिर हुआ क्या, सर वॉज लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, like literally he got pissed off of one student. That is I will not mention the name because whenever he will watch my video by any incident, by any chance, then he will definitely feel bad for him. यार इतना तो नहीं होगा कि वो देखेगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं बोलूँगा. मतलब लेट से कि एक लड़का था, सर उससे परेशान हो गए थे, उससे परेशान हो गए थे, बिल्कुल परेशान हो गए थे, क्योंकि वो 4 दिन से कॉपी नहीं कंप्लीट कर रहा था. और ये आदत मेरे में भी थी, बट चूंकि मैं फर्स्ट और सेकंड बेंच पे बैठता था तो मैं कॉपी कंप्लीट कर लिया करता था, क्योंकि एक प्रेशर होता है. इसलिए ओके, इस पॉइंट पे बाद में आते हैं, पहले ये ख़त्म कर लेते हैं. सो हुआ क्या, तो सर ने बोला कि अभिषेक गो एंड ब्रिंग द स्टिक फ्रॉम क्लास 6A. तो गया, तो जब मैंने स्टिक मांगी तो उस टाइम पे बहुत एक क्रेज़ था आरवी सर का. आरवी सर मतलब रामविलास यादव सर. उनका एक क्रेज़ था कि वो मारते बहुत हैं और मारते बहुत ज़्यादा हैं. और ऐसा भी था कि वो पढ़ाते अच्छे हैं, नो डाउट, वो अच्छा पढ़ाते थे. लेकिन मारने में अगर कोई बोल दे कि सर ने स्टिक मांगा है विद सर, एंड द नेम इज, इफ इट वाज आरबी सर, देन स्टिक कहीं से ना कहीं से मिलनी ही मिलनी है.
कोई मना नहीं कर सकता। नहीं तो अगर स्टिक नहीं मिलेगी तो मैं भी उस क्लास में जाके फिर वो उनको बताएंगे कि वो स्टिक क्यों नहीं दी। तो फिर मैं स्टिक लेके आया, तो सर ने बोला देखो ये नालायक इतना इतना दुष्ट है, इतना दुष्ट है कि इसको बिना दुखहरण महाराज प्रसाद लिए हुए इसको चैन ही नहीं आएगा। एंड ही वॉज रेफरेंसिंग द नेम दुखहरण महाराज टू द स्टिक, दुखहरण महाराज। तो वहाँ पे मुझे तब तो उतना समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब उस इंसिडेंट को याद करता हूँ तो फिर लगता है कि स्कूल लाइफ में मज़े थे। कॉलेज लाइफ में मज़े आए, नो डाउट मज़े आए, लेकिन स्कूल लाइफ इज स्कूल लाइफ ब्रो। स्कूल लाइफ जैसे कोई लाइफ मिलेगी नहीं। कॉलेज में अगर एक दो दोस्त आपके बन गए तो वो रहते हैं, लेकिन स्कूल के दोस्त होते हैं। मेरी बात है। सो आप सबसे बना के रखें, और हाँ लाइफ में फोकस करो। अगर आप लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड हो, भूल जाओ सक्सेस नहीं मिलने की। फोकस करो दुनिया में क्या हो रहा है, आपके अगल बगल क्या हो रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने आप को इतना हार्ड बनाओ। मैं भी इतना हार्ड नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं हूँ। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू लाइक फिक्स माई मेंटल स्टेट इन दैट वे दैट कुछ भी हो जाए, लेकिन जो मुझे काम करना है वो करना है। चाहे दिन के बदले रात हो जाए, लेकिन वो काम मुझे करना ही करना है। अगर इस लेवल की माइंडसेट होगी ना, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। चाहे आप कुछ भी डोमेन में आप सक्सेस ढूंढ रहे हो, नो मैटर वॉट, इन वॉट डोमेन यू आर सीकिंग फॉर द सक्सेस, you will definitely get one day, but for that you have to give your best, you have to fix your mental state as a rock solid bottom, rock solid part, okay? आपको पत्थर दिल बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सबके लिए नहीं पत्थर दिल के, अरे कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है, हु इज दिस एंड आई डोंट वांट टू टॉक टू लाइक दिस वे, नो, ऐसा नहीं। आप जब उस स्टेट में हो कि आप है, एक आप हो और एक आपका गोल है, उस टाइम पे आपको बस आपका गोल दिखना चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ, बस इस लेवल का कमिटमेंट लाओ अंदर, फिर देखो चेंजेस कैसे आते हैं। देन एवरीथिंग विल गेटिंग बेटर डे बाय डे, इट्स माई प्रॉमिस ब्रो। सी अभी तो मैं भी नहीं करता हूँ, थोड़ा मैं भी मतलब टाइम उतना मिल नहीं पा रहा ऑफ कोर्स, लाइक आई एम डूइंग द जॉब, सो आई हैव टू कंप्लीट 9 hours इन अ जॉब टाइम, बट जो भी टाइम उसके बाद मिलता है, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ करूँ। फिर डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल आप पता है क्या करना चाहिए, आपको टू डू लिस्ट बनाना चाहिए, टू डू लिस्ट। अभी मेरे पास है नहीं, मतलब दूर है, फिर मैं भी दिखाता टू डू लिस्ट कैसा होता है। और जो लोग पहले मतलब कि मेरी पुरानी वीडियो देख चुके हैं उनको तो पता है टू डू लिस्ट कैसा होता है, जो मैंने दिखाया था। आप सॉरी, आप टू डू लिस्ट बनाओगे ना, तो चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। आपको आइडिया लगता है कि आपको करना क्या था पूरे दिन में, और अगर आप रात में अगर ऑफिस से आए, लेट्स इन माय केस व्हेन आई रिटर्न बैक फ्रॉम द ऑफिस, और स्टिल मेरे पास कुछ टाइम बचा हुआ है, तो मैं वही काम करूंगा जो मैं प्लान किया था। तो ये काम मुझे याद नहीं रहेगा, ये काम मुझे टू डू लिस्ट याद दिलाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि टू डू लिस्ट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट एंड वी हैव टू वैल्यू इट। ऐसा होता है ना कि जो लिखा वो पत्थर की लकीर, तो जो टू डू लिस्ट में लिख दिया वो काम होना चाहिए। आपको इस लेवल का कमिटमेंट लाना पड़ेगा। विराट कोहली एक दिन में विराट कोहली नहीं बना था। हम आज देखते हैं वो किंग है, सब कुछ है, चेज मास्टर है, सब कुछ है, लेकिन उसको बनने के लिए तपस्वी बनना पड़ता है। ये सिद्धू पाजी ने भी बोला था, नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला था कि विराट कोहली बनने के लिए आपको तपस्वी बनना पड़ता है। तो ऑल्दो आई एम ह्यूज फैन ऑफ विराट कोहली, लाइक आई एम अ ग्रेट एडमायर ऑफ विराट कोहली। मतलब ऐसा है कि उसका सक्सेस मेरा सक्सेस लगता है, और उसकी फेलियर भी मुझे अपनी फेलियर दिखती है। तो आई एम दैट मच एडिक्टेड टू दिस मैन। मैं क्या बोलूँ कि मैं कितना एडिक्टेड हूँ उस मैन से, उस आदमी से। बट अगर आप इतना एडिक्टेड है उस आदमी से, उस इंसान से, तो आप जो वो कर चुका है ना, वो अपने अंदर लाने की कोशिश करो। वैसे ही एक दिन में वो आदमी ग्रेट नहीं बना। उसने अपने आप को सींचा है। आप भी सींचो। मैं भी सींच रहा हूँ। अगर कुछ लोग वीडियो देखेंगे तो मे बी ऐसा हो सकता है कि मजाक उड़ाएं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार, मजाक उड़ाने दो। आप अपना काम करो ना, यू हैव टू डू योर वर्क। You don't have to deal with anyone because they have their mouth and they are free to say anything because freedom of speech तो हर जगह है। अब अलग बात है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंज होगा, क्या क्या नहीं होगा, वो डेमोक्रेसी कितना बचा है कितना नहीं बचा है, उस पर हम जाते नहीं हैं, उस पर हम कभी और बात कर लेंगे, क्योंकि वो भी खतरे में है। क्या क्या चीज़ें हो रही हैं दुनिया में आपको पता चलनी चाहिए। बट या और पॉइंट इज़ दैट मेहनत करो। और अभी मैं वीडियो बना नहीं रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं और कुछ कर नहीं रहा था। अभी देखो मैं बोलने को मैं इंग्लिश में पूरा बोल सकता हूँ, पूरा A to Z बोल सकता हूँ, अच्छे से बोल सकता हूँ, लेकिन आई एम जस्ट फोकसिंग माई सेल्फ मोर टू स्पीक हिंदी, बिकॉज हिंदी इज़ माई सेकेंड लैंग्वेज आफ्टर द नेटिव वन। सो अगर मैं हिंदी फ्लुएंट बोलूँगा, तो मुझे लगता है कि अगर मैं हिंदी बोलूँगा तो मैं बिना सोचे बोलूँगा। ओके, अगर मैं कुछ बिना सोचे बोल रहा हूँ तो वो चीज़ें एट सडन निकलेंगी,
तो वो अच्छी निकलेंगी। मतलब उसको उसके बारे में मुझे सोचना नहीं है, तो जो मैं सोचूंगा वो मैं बोलूँगा। बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, तो मुझे पहले सोचूंगा उसको कि क्या बोलना है, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, फिर बोलूंगा। फिर तो वहाँ पे होता क्या है कि माइंड और जो आपका वोकल्स है वो इक्वली कोऑर्डिनेशन में नहीं बैठ पाते हैं, तो वहीं पर ज़्यादा स्टटरिंग होती है। सो आई हैव डिसाइडेड कि पहले उसको हिंदी से हैंडल करते हैं। बीच बीच में मैं इंग्लिश बोलूँगा क्योंकि वो मेरी आदत है, मतलब वो जाएगी नहीं, वो इंग्लिश में बोलता रहूँगा। लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक इन हिंदी मोर, सो दैट कि आप लोग भी ज़्यादा रिलेट कर पाओ। और दूसरी बात ये है कि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे कि नहीं, मतलब मेरी वॉइस अच्छी निकल रही है, या मैं कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है मैं खुद को देख पाऊँ। क्योंकि बात यह है कि आप इंग्लिश बोल के अपने आप को कूल तो समझ लोगे, आप कूल लगोगे भी। इंग्लिश बोलना इज आर्ट। लेकिन अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो आप सीखो। मैं इस बात के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन इंग्लिश ही सब कुछ नहीं है। आपको पहले एक आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन आना चाहिए कि आप सामने वाले को कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बोल पाया, इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, art of presenting yourself in front of anyone is the most important thing. You have to incorporate it in your life. देखो इंग्लिश बोलने में क्या है, मैं बोल दे रहा हूँ लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, मैं बहुत कम बोलूँगा इंग्लिश, क्योंकि मुझे हिंदी से अभी, और ये हिंदी एक दो दिन नहीं चलेगा, एक हिंदी कम से कम 20-30 दिन तक चलता रहेगा। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो हिंदी बनाऊंगा, ताकि आप लोग भी रिलेट कर पाओ। और कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जो उसको मतलब इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो हिंदी में समझ जाया करेगी। तो इसलिए बाकी वीडियो में कुछ फैंसी रखने को मन नहीं करता, क्योंकि वीडियो को जितना मतलब सिंपल रखोगे ना उतना ज़्यादा बेटर है। और पहले मैं वीडियो एडिट किया करता था, आई नो कि उसमें वो वीडियो में व्यूज आएंगे, व्यूज का मुझे क्या करना। मैं ये चैनल सेल्फ इम्प्रूवमेंट ग्रोथ के लिए बना रहा हूँ ना, तो वो मेरा काम है मुझे सीखना। और अगर कोई बंदा मुझसे रिलेट करता है, कोई लड़का या लड़की मुझसे रिलेट करता है या करती है, तो वो भी मेरे से सीखेगा, ऑब्वियसली सीखेगा। अब ये बताओ, कोई लड़का है, ठीक है, वो खुद, ये तो मैं ही हो गया, ठीक है, लेट्स कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैंने एक ऐसे टीचर देखा था यूट्यूब पे, व्हेन आई वाज इन माय इंजीनियरिंग पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने देखा था कि एक सर थे जो बैकएंड में बहुत अच्छे थे, ठीक है, बैकएंड में वो बहुत अच्छे थे। लाइक चलो नाम ले ही लेते हैं, लब बब्बर सर बैकएंड में बहुत अच्छे थे, मतलब वो उनके बहुत बहुत ज़्यादा फेमस थे बैकएंड में, ठीक है। और हुआ क्या कि C++ पे वो उन्होंने मास्टरी हासिल की थी, और उनके DSA पे वीडियोस पड़े हुए हैं। एंड नो वन वाज थॉट कि जब वो फ्रंट एंड पढ़ाएंगे तो वो शायद उससे भी बेटर होगा। तो उस टाइम पे वो सीख रहे थे, बट ही वॉज कीप अपलोडिंग द वीडियोज़। सो देखो वहाँ पे वो सीख भी रहे हैं, आपको सिखा भी रहे हैं। तो सीख रहे हैं तो आपको सिखा रहे हैं। तो यही चीज़ मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी कर रहा हूँ, और आपको करवा भी रहा हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड मतलब अगर कोई सच में सिंसियर है तो। अदरवाइज मैं किसी को फोर्स नहीं करता है सब चीज़ करने के लिए, वो उनके ऊपर है, वो करे ना करे। सो यही बात है। सो वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, और मिलते हैं जल्द। अब इस पे बाय।